We, the Indian Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, ISHRE, stand tall in the Indian industry with over 10,000 professionals as members and almost an equal number of student members. Founded in 1981 and headquartered in Delhi, we operate from chapters and sub-chapters spread all over India, bringing our entire industry together. Individuals become members of our society according to their professional and academic standards. Our roadmap of the future looks very bright, with thousands of new members joining this technical society every year and bringing in a fresh outlook to our industry intelligence. ISHRE disseminates knowledge through its technical committees, which consists of some of the best minds of our industry. It publishes technical books, newsletters, and a prestigious journal, distributing the wealth of knowledge to all its members. Working with government departments, ISHRE helps formalize industry codes and standards. ISHRE promotes research by offering financial support to student members to carry out groundbreaking work in technology, systems, and processes. Our educational wing, ISHRE Institute of Excellence, organizes training programs and workshops to help members enhance their skill sets. Our specially designed certification programs under ICP, that is, ISHRE Certified Professional, empower professionals to always be in step with the prevailing technology. Specially designed courses for technicians are offered to meet the ever-increasing demand for a skilled workforce. ISHRE organizes exhibitions, conferences, panel discussions, and product presentations throughout the country. We organize the industry's largest international exposition in South Asia, Acrex India, to showcase the cutting-edge technology, innovation, and provide a platform for closer interactions amongst the decision makers in the industry. The Acrex exhibition is now growing from HVAC&R show into BFA, Built Fair Alliance. This brings together several allied shows connected with the building services industry all at one location. Our chapters organize several other popular events like AgriConf in Delhi, Raycon in Kolkata, Symposia in Mumbai, TechFest in Goa, and many more. We are committed to provide training and career guidance to our student members through seminars, lectures, quiz contests, and site visits. AQuest, a prestigious quiz competition organized by ISHRE to catalyze the transformation of the budding engineering professionals. ISHRE provides a platform to potential employers to select student members for careers in HVAC and our industry at the ISHRE Job Junction. Young minds are made aware of the need for saving power, clean air, and sustainability. The K-12 initiative of ISHRE focuses attention on school students' development to inculcate a scientific fervor and help develop them into responsible citizens. Speedy information is imperative to keep moving forward in this hyper-connected digital age. Searcher, a specifically designed search engine, is now available, which allows access to a well-cataloged database on HVACR and building services industry with just a few clicks. ISHRE cooperates with various national and international bodies, industry, governments, academia, think tanks to promote the concept of sustainability, environmental protection, and energy efficiency and conservation to enter and explore the universe of the Indian HVACR industry. Log on to ishre.in that unfolds a panorama of information,
Let us engineer a sustainable future together through ISHRE. Thank you, Mr. Gaurav. Myself, N. Ram, Program Chair, ISHRE Jaipur Chapter. I welcome you all for today's session on MSME benefits from government by Surbhi Vijayvargiya. We at ISHRE completing our 13th year with 250 members and increasing day by day. We have Jodhpur subchapter as and have 10 students and increasing. Now, I would like to invite Mr. Kishan Khatri, our President, ISHRE Jaipur chapter, to introduce our today's speaker. Thank you. Thank you so much, sir. I would like to welcome all the participants on the platform of ISHRE Jaipur chapter. So as well said by Mr. Enram that ISHRE Jaipur chapter is having more than 250 members now. We have conducted several programs last month, and in the continuation of that, today we have a bit different topic from air conditioning, that is the way forward to rebuilding the MSME. So this is again a very important topic in today's scenario, because you know all pandemic is going on, lockdown is there. So after that, how the things will be moving. So definitely, considering that point, we have come up with this topic, and we have very well-known speaker with us, Surbhi Vijayvargiya, and a bit information would like to introduce about her. Surbhi Vijayvargiya is a finance professional by qualification, and she is an entrepreneur by choice. She is the first attempt chartered accountant from batch of 2014. She is a CFA level 2 qualified professional, post a 3.5 year stint with multinational giant Barclays. She forayed into power solution business with a brand Aztec Computecom Power Company. Her company deals with power backup solutions, precision air conditioning solutions, data centers, etc., and has association with category leaders like Vertiv Energy, which was earlier known as Emerson. So she is also working as a woman chair as of now. So in 2020-21, this society here, she is serving this society as a woman chair. So we are proud that we have a leader with us in a committee, and she's able to serve, and she's ready to serve you all. So welcome Ms. Surbhi Vijayvargiya on the platform of ISHRE. Please, it is over to you now. Hi Kishan, thank you so much for such warm welcome. Can I share my screen now? Are you able to see my screen? Yes, visible, well visible. Okay, so good morning everyone, and a very happy Sunday to all of you. Though I know अभी हर दिन ही Sunday की तरह है, लेकिन अगर जो new normal है, अगर हमें उसे accept करना है, तो there are going to be Sundays in that. So you know we should not reduce the importance of Sundays. So yeah, I hope all of you have a very peaceful Sunday today, and happy Mother's Day to all. I hope everyone is keeping safe at home. So चलिए, अगर safety की बात हुई है, so I want to start with a question that are you guys keeping safe at business? Okay, so it's a webinar. I think I cannot hear voices of participants, but I think most of you would answer a big no, because as an entrepreneur I know what struggles we are going through, and you know आज हमारा lockdown का 49 day है, so वैसे ही anxieties के level बहुत high रहे हैं इस दौरान, और जब भी business का pressure आता है तो ज़्यादा tension हो जाती है. अभी जैसे 5 days पहले ही मुझे मेरे एक employee का text आया
that he's expecting salary for the month of April. So I had a lot of anxieties at that moment, not because he's expecting salary, but because उन्हीं की तरह मेरे सारे employees मुझसे salary expect कर रहे हैं. लेकिन आज considering कि future बहुत vague है, कुछ नहीं पता है, तो क्या मैं इस position में हूँ कि मैं उन्हें 100% support कर सकती हूँ? मैं answer नहीं कर पा रही थी खुद को. इसी तरीके से बैंक का भी phone आता है कि आप इंटरेस्ट पे करिए. वैसे मोरेटोरियम मिला है हम सबको, लेकिन जो सीसी लिमिट्स हैं उसमें बैंक सब पुशिंग कि आप इंटरेस्ट पे कर दो, अदरवाइज वो ऑटो डेबिट हो जाएगा आफ्टर फ्यू मंथ्स. सो ये सारी चीजें बहुत एंजाइटी बढ़ाती है. एंड आई नो मोस्ट ऑफ यू आर इनटू बिजनेसेस इन सम काइंड ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज. सो हम सब फील कर पा रहे हैं कि एक एंजाइटी का दौर चल रहा है, फाइनेंशियल क्रंच का दौर चल रहा है, या फिर मैं कहूँ कि नो बिजनेस फॉर सम टाइम का दौर चल रहा है. So we are all floating in the same boat. लेकिन मेरे डैड ने मुझे एक बात सिखाई थी एक बार. He's also with me in my business. So he taught me once कि सुरभि, अगर आप एक ट्रू एंटरप्रेन्योर हैं और अगर आप में आपको नॉलेज है, आपको एक्सपीरियंस है, तो आपको आज कोई जीरो भी कर देगा ना, आप नेक्स्ट डे फिर से खुद को खड़ा कर सकते हैं. क्योंकि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तब भी आपने जीरो से ही स्टार्ट किया था. So I think most of you are very experienced entrepreneurs, and I hope I believe you can also relate with this thought. So I hope कि हम जब इस जो pandemic से बाहर निकलेंगे, we all come out safe and sound. Okay, so my today's topic is rebuilding MSME, the way forward. आप लोगों ने बहुत डिबेट्स आप लोग न्यूज चैनल में सुन रहे होंगे, and like ki MSME needs serious attention from government in this pandemic. A lot of articles are being written in this time on MSME. बहुत सारे forums ने pitch किया है government को कि MSME को relief package की जरूरत है जल्द से जल्द. लेकिन क्या आप समझते हैं कि MSME है क्या? क्यों ये इकोनॉमी का इतना important part है that there's so much hue and cry everywhere that MSME needs serious attention from government. So एक लगता है कि बार बार ये क्वेश्चन उठता है दिमाग में कि आप और मैं भी क्या एमएसएमई के पार्ट है, हम कैसे इकोनॉमी को इतना अफेक्ट कर सकते हैं, अगर एमएसएमईज नीचे गिरती हैं तो इकोनॉमी कैसे डाउन होती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट who are actually MSME segment क्या है, and why attention from government is so imperative. So कुछ मैं facts check आपके लिए, I've written some facts here. These are all floating on internet and you must have read it. But if you go through these, some of them are like MSME sector accounts for about 40% of exports and almost a third of national output. And it is critical to address loss of revenue so as to purposefully avoid closure of units and threats to livelihoods. An estimated 6.3 CR MSME units employ 11 crore resources. This is a very, very huge number. And from this factual data only, you can make out कि जो MSME है, that is the heart of the economy. Similarly, एक और जो problems MSME के साथ आ रही है कि ये जो organizations होती हैं, they do not have too much cash to wait out the crisis. They don't have the cushion money of the bigger firms or access to cheap capital to help them tide over this period. Which is very true. अगर फ्यूचर में जाके डिमांड भी कम हो जाती है, हमारे पास फाइनेंशियल असिस्टेंस भी जो एमएसएमई सेगमेंट है अगर उसके पास नहीं रहता है तो इट कैन फॉल डाउन. एंड बिकॉज इट इज सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी विल फॉल डाउन ऑल्सो. अगर आप अंडरस्टैंड करें एमएसएमई को नंबर्स वाइज, तो आप देख सकते हैं कि एमएसएमई किस किस सेगमेंट में डिवाइडेड है, किस किस एरियाज में डिवाइडेड है. So if I say कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है रूरल एरिया में, that is around 114 lakhs. तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसी भी रूरल एरिया में बंद हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस, तो कितने सारे लोग जॉबलेस हो जाएंगे एंड हाउ मच टफ इट इज गोइंग टू बी. वैसे ही गरीब ऑलरेडी बहुत चीजों से जूझ रहा है और अगर आप उसका एम्प्लॉयमेंट भी हटा दे तो इंडिया इज गोइंग टू हिट हाई ऑन पॉवर्टी. So similarly, urban areas में भी जो trading करते हैं finished goods, there are around 121 lakhs MSMEs जो कि urban area में work कर रहे हैं. अगर आप नीचे वाला चार्ट देखें, the estimated employment in MSME sector, you can see कि how much lakhs of people are being employed by MSME. So clearly this shows कि MSME के बारे में जो बातें हो रही हैं वो बहुत जरूरी है. MSME
is literally the heart of the economy, and it is very very important कि government भी MSME के लिए कुछ assistance, financial assistance or whatever जिस तरीके से भी help हो सकती है इस crisis से बाहर निकालने के लिए. It is a very very important topic to talk on everyday basis. Before going forward, मैं एक बात पे क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि अभी क्राइसिस आ गया है तो सब MSME की बात कर रहे हैं. गवर्नमेंट को बहुत I think it's been 15 years, government realized the importance of MSME. गवर्नमेंट ने 2006 में एक एक्ट बनाया था, MSME एक्ट 2006, और पर्पस ऑफ दैट एक्ट यही है कि जो भी हमारी MSMEs हैं उनको पुश करना, उनको बूस्ट करना, ताकि जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है, जो इंडिया की इंडस्ट्रीज है, वो भी ग्रो कर पाए एंड दे आर एबल टू कॉम्पीट विद द MNCs. सो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अभी कोरोना आ गया तो हम बोल रहे कि आप MSME पे ध्यान दो. गवर्नमेंट देती है, लेकिन आप अगर गवर्नमेंट इतना सालों से इतना बूस्टअप किया है, सो नाउ इज हाई टाइम कि गवर्नमेंट को पीछे नहीं हटना चाहिए. गवर्नमेंट को उनको एक थोड़ा ऊपर जाके लेवल ऑफ सपोर्ट देना चाहिए ताकि MSMEs इनसे बाहर निकल सके. Another reason I chose this topic, so my topic of webinar is how to rebuild the MSME after this crisis. So if I say कि yes, I have a definite answer for this, the answer is definitely no. आज जो situation है, the corona graph is not decreasing. जो market है वो open हो रहा है, लेकिन कोई work नहीं हो रहा है. अगर मैं बात करूँ orange zones, green zones की, कैश फ्लो इज एब्सोल्युटली जीरो. मतलब जो मनी मूवमेंट है वो बहुत कम हो चुका है. सो इस टाइम में हम कैसे खुद को रीबिल्ड करें, उसका कोई डेफिनेट आंसर तो नहीं है, लेकिन हमें हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए. सो आई रियलाइज कि एज एन एंटरप्रेन्योर, इफ वी बिकम लिटिल स्मार्टर इन दिस टफ टाइम, सो अगर हम थोड़े ज्यादा अवेयर हो जाए जो हमें बेनिफिट्स अवेलेबल है गवर्नमेंट से, या जो पहले भी गवर्नमेंट ने बेनिफिट हमें प्रोवाइड किए हैं और हमने अगर उनको यूज नहीं किया है अभी तक, तो दिस इज द राइट टाइम टू बी सेल्फ अवेयर. दिस इज द राइट टाइम टू बी अ स्मार्ट एंटरप्रेन्योर. एंड अभी जितना आप गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स मिलते आए हैं इतने सालों से, और जो अभी गवर्नमेंट अगर देती है, उसको आप यूटिलाइज करेंगे तो डेफिनेटली एक जीरो बेनिफिट से एक भी बेनिफिट मिले, दैट्स ऑलवेज बेटर. सो इसलिए आई चोज दिस टॉपिक. नाउ लेट्स गेट लिटरल कि गवर्नमेंट कैसे डिफाइन करती है हमें. सो बेसिकली बहुत लोगों को लगता होगा कि मेरा टर्नओवर 2 करोड़ है तो हाँ मैं एक MSME हूँ. किसी को लगता होगा मेरा टर्नओवर 100 करोड़ है तो शायद मैं एक मीडियम एंटरप्राइज हूँ. किसी को लगता होगा मेरा टर्नओवर 200 करोड़ है तो मैं शायद MSME नहीं हूँ, क्योंकि 200 करोड़ टर्नओवर इन अ नॉन मेट्रो सिटी इज प्रीटी वंडरफुल. लेकिन गवर्नमेंट का जो एजेंडा है, गवर्नमेंट का जो लुकआउट है कि उसको किस वाइड लेवल ऑफ इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना है, दैट्स अ वेरी वाइड रेंज जो उन्होंने बनाई है. तो जो उन्होंने MSME एक्ट बनाया था 2006 में, उसमें डेफिनेशन ऑफ MSME इज डिफरेंट. लेकिन ये एक न्यू डेफिनेशन जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये गवर्नमेंट ने प्रपोज की है, अभी तक ये फाइनलाइज नहीं हुई है, बट स्टिल आई लाइक दिस डेफिनेशन मोर क्योंकि क्लैरिटी देती है. सो इन 2018 यूनियन कैबिनेट ने प्रपोज की थी डेफिनेशन ऑफ MSME इन लाइन विद एनुअल टर्नओवर. तो ये कहता है कि अगर आपका टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है, आप एक माइक्रो एंटरप्राइज है. अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से 75 करोड़ है तो आप एक स्मॉल एंटरप्राइज है. और अगर आपका टर्नओवर लेस देन it's more than 75 CR and it's less than 250 CR, then you are a medium enterprise. So you can see, now you can relate कि आप MSME हो, आप किस लेवल पे फॉल करते हो, और कितनी वाइड रेंज को गवर्नमेंट टारगेट करती है कि उनको हेल्प कर सके, उनको बूस्ट कर सके, ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज ग्रो कर सके. Okay, so now I'm going to talk about MSME Act because it's very important कि आप, मतलब हो सकता है कि आप में से बहुत लोग ऑलरेडी MSME एक्ट में रजिस्टर्ड हो. MSME एक्ट इज मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट. आप लोगों में से बहुत इस एक्ट में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आर अवेयर ऑफ दिस एक्ट बट आर नॉट रजिस्टर्ड येट. एंड प्लस जो अगर मैं MSME सेगमेंट की बात करूँ ना, वो बहुत द मेजॉरिटी पोर्शन बिलोंग्स टू अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट. मतलब बहुत इनफॉर्मल तरीके से वर्क कर रहे हैं, जैसे कि GST रजिस्ट्रेशन नहीं होता बहुत एंटरप्रेन्योर्स का, जो लोग छोटे लोग होते हैं, क्योंकि उसकी भी थ्रेशोल्ड लिमिट है कि आपका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा होना चाहिए तभी आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है.
बहुत सारा ऑप्शंस और होते हैं, जैसे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का ऑप्शन होता है, तो आपको उसमें बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि बहुत इनफॉर्मली ऑपरेट कर रहे हैं, और उनको ट्रैक करना फॉर एनी बैंक, फॉर एनी गवर्नमेंट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो लोग कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है। सो अब अगर गवर्नमेंट के बेनिफिट्स आते हैं, कोई रिलीफ बेनिफिट आता है, तो सबसे ज्यादा जरूरत उस छोटे बिजनेस हाउस को है। लेकिन अगर गवर्नमेंट उनको ट्रैक ही नहीं कर पाएगी, या बैंक उनको ट्रैक नहीं कर पाएगा फॉर एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो वो असिस्टेंस उन तक पहुंच नहीं पाएगी, एंड दे ऑल विल बी वाइप्ड ऑफ। So इसलिए अगर you are registered in this act, it's very good. If you have friends, family, who are running small businesses and they are not yet registered in MSMED Act, आपको उनको encourage करना चाहिए, ताकि वो एटलीस्ट गवर्नमेंट की रडार, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में आ पाए, ताकि जो भी उनको बेनिफिट्स मिले वो उनको मिल पाए। अगेन क्लैरिटी, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसमें रजिस्टर हो तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, बट दिस इज वन वे ऑफ कमिंग इनटू रिकॉर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सो MSMED जो एक्ट है उसके हिसाब से आपकी जो एलिजिबिलिटी होती है कि आप एलिजिबल हैं क्या रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। सो दो टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज खुद को रजिस्टर करा सकती हैं। वन इज एंटरप्राइजेस विच आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स, एंड दूसरी काइंड ऑफ एंटरप्राइजेस जो कि सर्विसेज रेंडर करती है, एनी काइंड ऑफ सर्विसेज। सो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है और आपका जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में, दैट इज अप टू 25 लाख, देन यू आर अ माइक्रो एंटरप्राइज। अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज बिटवीन 25 लाख टू 5 CR, देन यू आर अ स्मॉल एंटरप्राइज। अगर जो आपका इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में, दैट्स 5 CR टू 10 CR, तो आप एक मीडियम एंटरप्राइज बनते हैं। सिमिलरली सर्विस एंटरप्राइज में भी जो डिफरेंट क्राइटेरिया है कि अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है प्लांट एंड मशीनरी में, दैट इज अप टू 10 लाख रुपीज, देन यू आर अ माइक्रो एंटरप्राइज। If it is 10 lakh to 2 CR, then you're a small enterprise. And if it is between 2 CR to 5 CR, you're a medium enterprise. ध्यान रखिए कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी का मतलब इन्वेस्टमेंट इन लैंड नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट इन फर्नीचर फिक्सचर्स नहीं होता है। जो भी प्लांट एंड मशीनरी आपके मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस से डायरेक्टली रिलेटेड है, ओनली दोज प्लांट एंड मशीनरी विल बी काउंटेड टू चेक योर एलिजिबिलिटी फॉर MSME. Now the question comes, does a trader of finished goods can get registered in MSME Act? हमें से बहुत लोग हैं जो जैसे ट्रेडिंग ऑफ फिनिश गुड्स में डील करते हैं, हम एक जगह से सामान लेते हैं दूसरी जगह बेच देते हैं। सो द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। ट्रेडर्स जो है वो एलिजिबल नहीं है MSME रजिस्ट्रेशन के लिए, ओनली मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स एलिजिबल हैं। दो ट्रेडिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए भी ट्रेड लाइसेंसेस हैं अंडर शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, तो वहां पे आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। I'm not going to discuss that. My concentration is mainly on MSME whom government is targeting. But why ट्रेडर को गवर्नमेंट अभी टारगेट नहीं कर रही? क्योंकि there is nothing unique about trade. अगर आप एक शॉपिंग पोर्टल में चीजें बेच रहे हैं तो आप एक जगह से खरीद के दूसरी जगह आप चीजें बेच रहे हैं, so there is nothing unique. बट अगर आप कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो गवर्नमेंट उन लोग को आगे ले जाना चाहती है, गवर्नमेंट उन लोग को प्रमोट करना चाहती है ताकि मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट प्रमोट हो पाए। ओके, जस्ट टू गिव यू स्मॉल ब्रीफ कि आप MSME रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं। बहुत ही छोटा और सिंपल सा प्रोसेस होता है। ये वेबसाइट मैंने मेंशन की, आप यहाँ जाइए। ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपको वहाँ पे अटैच करने पड़ेंगे, उनका नंबर मेंशन करना पड़ेगा। पैन कार्ड ऑफ द कंपनी, एप्लीकेंट, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, NIC कोड, एंड within like it's a very small process, like 15-20 minutes में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, maybe in a day or so you will get the certificate also. So हम आगे बेनिफिट्स देखेंगे रजिस्ट्रेशन के क्या बेनिफिट्स होते हैं, बट आज आफ्टर दिस वेबिनार इट्स माय रिक्वेस्ट कि अगर एक भी बेनिफिट आपको लगे आपके काम के लायक है तो प्लीज गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ। इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल प्रोसेस। NIC कोड बेसिकली एक नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड होता है। जब भी आपने अपनी कंपनी रजिस्टर कराई होगी आपको वो कोड मिला होगा। अदरवाइज आप जब इसके लिए MSME के लिए रजिस्टर कराएंगे तो वहां पे देयर आर ऑप्शंस, like 78 means industries working in air conditioners, 79 means industries working in printing. So there are options to select. और गवर्नमेंट के भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि वो कैसे इकोनॉमी को टैप कर सकती है। सो NIC is one of the way statistical standard है for developing and maintaining the comparable database for various economic activities, ताकि हम ये देख सके कि कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है नेशनल वेल्थ की तरफ। Okay,
So as I said, MSMED registration कराना जरूरी है, लेकिन obviously आप लोग को बहुत जरूरी है कि आप उसके benefits जाने. Though it's my request to everyone that go and Google the MSME Act. It's a very huge act and उसमें बहुत सारे industry specific जो भी आपका nature of business है, उससे specific बहुत सारे अलग-अलग उसमें heads हैं. और आप उसमें पढ़ सकते हैं कि आपके बिजनेस को क्या स्पेशल एग्जेम्पशंस हैं, क्या स्पेशल सब्सिडीज मिली हुई हैं. So I have not included all those special benefits because that's very huge and that's industry specific also. But जो common benefits होते हैं, which you should know, ताकि आपको realize हो सके कि हाँ ये एक benefit मेरे लायक है, तो मुझे अपना registration कराना चाहिए. So first is priority lending. आप अगर देखेंगे कि जो आरबीआई बैंक है उसने हर बैंक को ये डायरेक्शन दे रखे हैं, हर बैंक को फंड्स अलॉट कर रखा है कि आपको इतना फंड तो एमएसएमई को लेंड करना ही करना है. इवन बैंक्स के आप अपने बैंक में भी फोन करके पूछ सकते हैं, हर बैंक का टारगेट होता है कि इतना फंड मुझे एमएसएमई को देना है. सो इफ यू can produce the MSME registration certificate, you get easy access and you get priority in getting a loan from the bank. Second is less interest rate loan. MSME रजिस्ट्रेशन अगर आपका है तो आप रियलाइज करेंगे कि आपको जो बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर हुई है फॉर द लोन, इट्स लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अदर कंपनीज को प्रोवाइड की जाती है. ये बैंक्स को इंस्ट्रक्शन है कि आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे दैट शुड बी लेस देन व्हाट यू आर ऑफरिंग टू द अदर मार्केट्स. एंड ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट कैन डिफर फ्रॉम डिफरेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस. सो आपको भी थॉरो स्टडी करनी चाहिए एंड देन as per study you can choose your bank. This is for your example, these are different government banks and you can see the rate of interest is very less as compared to the loans private banks provide. Unsecured loans जो private banks provide करते हैं उसकी rate of interest somewhere around 18 से 22% चलती है. लेकिन अगर आप ये rates देखें for MSME, these are looking very less, though it's an indicative rate. हो सकता है उनके processing fee भी add हो जाए तो थोड़ी सी interest rate बढ़ जाए, but still जो cheaper finance access है वो एक one of the feature है MSME registration का, so you will get it. Next is credit linked guarantee scheme. So जो ministry है MSME की, उन्होंने एक ट्रस्ट बनाई है, गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. इसमें क्या होता है कि आपको अप टू 50 लाख तक का लोन मिल सकता है एंड द इंटरेस्ट रेट इज समवेयर गोइंग टू बी बिटवीन 10 to 15% एंड इट्स गोइंग टू बी कोलैटरल फ्री लोन. एंड आपके लिए गारंटी दिस CGTMSE जो फंड बनाया है वो आपके बिहाफ पे गारंटी देगी टू द बैंक्स जो आपको लोन दे रहे हैं. So again this is a very good advantage कि अगर इतने कम रेट पे आपको लोन एक्सेस हो रहा है कोलैटरल फ्री, तो आई थिंक ये जो लोन है ये हम सबके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है. तो ग्राउंड रियलिटी मतलब मैं बात कर रही हूँ कि ये एडवांटेज है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी हमेशा टफ होती है. इतना इजी नहीं होता आपको एक्सेस करना सारी चीजों को. सो विल सी, बट यू शुड बी अवेयर कि क्या क्या बेनिफिट्स है. माय मेन एजेंडा इज दैट. नेक्स्ट इज एक्सक्लूसिव परचेज एंड शेल्टरिंग फ्रॉम द कंपटीशन. अगर आप MSME में रजिस्टर्ड है तो जो एक MSME का मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम है जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलो करती है प्राइस एंड परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी, जहां पे मोर देन 358 आइटम्स आर लिस्टेड एंड वो एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट परचेज करती है MSME से. सो डेफिनेटली अगर आप MSME रजिस्टर्ड है, आपको गवर्नमेंट टेंडर्स में प्रेफरेंस मिलता है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी परचेजिंग में प्रेफरेंस मिलता है. सो इट्स डेफिनेटली अ वेरी एडेड एडवांटेज इफ यू गेट रजिस्टर्ड विद MSME. नेक्स्ट इज मार्केट असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन. जैसा मैंने कहा कि जो MSME का मेन MSME एक्ट बनाने का मेन एजेंडा था कि हमारी इंडिया की इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना ताकि वो MNC लेवल पे कॉम्पीट कर पाए, इंटरनेशनली ग्रो कर पाए और इंडियन मार्केट, इंडियन इकोनॉमी ग्रो करे. सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ऑर्गेनाइज करती है सेवरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, क्राफ्ट फेयर्स, एग्जीबिशंस, ट्रेड रिलेटेड इवेंट्स इंटरनेशनली ऑल्सो. सो अगर आप MSME में रजिस्टर्ड है तो आपको एक्सेस मिलता है टू ऑल दीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन ट्रेड रिलेटेड विद डिफरेंट कंट्री, और आपको न्यू बिजनेस कनेक्शंस मिलेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं कि आप अपना बिजनेस इंटरनेशनली भी ग्रो कर सकते हो. एंड जो गवर्नमेंट है वो इंसेंटिवाइज भी करती है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय MSMEs बाय सब्सिडीज, टैक्स एग्जेम्पशंस, टेक्निकल सपोर्ट.
So this is another very good advantage of getting registered in MSME. Next is reimbursement of ISO certification. जैसे obviously हम सब जो हमारा business कर रहे हैं, हम लोग अपने जो भी services होती हैं या फिर जो भी products होते हैं उनको better बनाने के लिए we get them registered with ISO. So जो भी expenses आपके ISO में होंगे अगर आप register कराते हैं, and if you are an MSME registered, तो वो सारे expenses आपके reimburse कर देगी government आपको. Next is fewer electricity bill. Concession available here to all the enterprises that have the MSME registration certificate by providing application to the Department of Electricity along with certificate of MSME registration. ये benefit I think बहुत huge benefit है for the manufacturing industries जो कि rural areas में काम करते हैं. अगर किसी भी manufacturing industry को boost करना है तो only way is कि आप उसके running expenses reduce करें. So अगर आप उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल में कंसेशन दे पा रहे हैं और अगर उनके रनिंग एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, so that's a very good and big added advantage. Now another advantage is protection against payment. I think ये जो advantage है, this is the best advantage जो मेरे को लगता है, क्योंकि आज के टाइम में किसी भी अगर आप कोई भी सेल करते हैं, the first problem जो सारे MSMEs को आती है वो आती है protection against delayed payments. मतलब उनके पेमेंट्स डिले हो जाते हैं. बहुत सारी कंपनीज है जो 6-6 महीने तक पेमेंट नहीं कर रही हैं. यू कीप ऑन फॉलोइंग अप विद देम, लेकिन पेमेंट टाइम पे नहीं आता है. और MSME वर्क करती है ऑन द रोटेशन ऑफ मनी. तो जब आपको पेमेंट टाइमली नहीं मिलता है तब एक्चुअल क्राइसिस आता है. सो MSME में ये प्रोटेक्शन दिया गया है कि अगर आप MSME में रजिस्टर होते हैं तो आपको, जैसे आपको भी बहुत बार मतलब अगर मैं अपने बिजनेस की बात करूं, मेरे बहुत सारे बायर्स मुझे मेल करके पूछते हैं कि आर यू रजिस्टर्ड विद MSME एक्ट. वो इसलिए पूछते हैं कि अगर मैं रजिस्टर्ड हूं तो देन इट्स देयर ड्यूटी कि वो मुझे पेमेंट या तो विद इन जो पेमेंट टर्म्स है उसमें पेमेंट करें, नहीं तो जब से उन्होंने गुड्स रिसीव किया है विद इन 15 डेज दे हैव टू पे मी. और अगर वो 45 डेज तक मुझे पेमेंट नहीं करते हैं तो they would be liable to pay monthly compounded interest at 3 times the bank rate notified by RBI. तो ये लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है बायर के पार्ट पे कि उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. तो ये आपके लिए डर सा है या फिर जो भी है, लेकिन बायर्स भी अगर कोई MSME होता है उसको पे टाइमली करने का कोशिश करते हैं. अगेन कमिंग ऑन द ग्राउंड रियलिटी, बहुत सारे केसेस अभी भी ओपन है जो जिनके डिलेड पेमेंट्स हो गए. सो होता क्या है कि अगर आपको आपका जो बायर है वो 45 डेज में भी पे नहीं कर रहा है, देन यू कैन गो टू MSME काउंसिल. MSME council is very MSME friendly council. उसके जो मतलब टीम है उसमें सारे IAS ऑफिसर्स इस तरीके के लोग होते हैं. वो लोग ट्राई करते हैं कि दोनों पार्टी का मीडिएशन कराएं एंड स्विफ्टली एंड स्मूथली चीजें सॉल्व हो जाए. और अगर नहीं होता है तो देन दे पास एन ऑर्डर टू द आर्बिट्रेशन. लेकिन जो ये MSME टीम्स होती है, काउंसिल्स होते हैं, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है और ये स्टेट टू स्टेट डिफर करता है. तो मैंने एक लॉयर से बात की थी तो उन्होंने मुझे बताया कि जो अभी करंटली राजस्थान का MSME काउंसिल है वो शायद इतना इफेक्टिव नहीं है, इसी कारण थोड़े केसेस ओपन रह जा रहे हैं. लेकिन इफ आई टॉक अबाउट स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, these guys are doing phenomenal. The MSME council is among the best councils. तो भले आपको पेमेंट थोड़ा सा डिले हो जा रहा है लेकिन एक ही प्रोटेक्शन मिलता है अगर आप MSME में रजिस्टर्ड हो. एंड बायर अवॉइड करेगा कि मेरे पे कोई लिटिगेशन ना हो, कोई केस ना बने, कोई उलझन ना पड़े, तो वो लोग आपको पेमेंट टाइमली करेंगे. ओके, सो जो ये मैंने बेनिफिट्स बताए, अगर आप लोग को लगता है कि एक भी बेनिफिट इज वेरी यूजफुल फॉर यू, देन आई थिंक यू शुड आफ्टर दिस वेबिनार शुड रजिस्टर फॉर द MSME एक्ट. लेकिन हमेशा हर चीज के बेनिफिट्स भी होते हैं, देयर आर डिसएडवांटेजेस आल्सो, सो यू शुड वे बोथ द थिंग्स. होता क्या है कि अगर आप MSME में लोन के लिए अप्लाई करते हैं या जो भी प्रोसेस के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन इज वेरी इजी, इट विल कम वेरी फास्ट. बट अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत टीडियस है, बहुत सारे पेपर वर्क लगेंगे. इट मे टेक अप टू 45 डेज कि आपको लोन मिले. तो प्लानिंग थोड़ी उसमें डिस्टर्ब हो जाती है. बैंक से जनरली लोन 5-6 दिन में मिल जाता है अगर आपकी क्रेडिबिलिटी चेक सब हो जाता है तो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है. देन अगर आप एक न्यू एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आपको इजी एक्सेस मिल गया लोन का तो डेफिनेटली आप पे इंटरेस्ट पाइल अप होता जाएगा. सो दैट इज अनदर कॉन. प्रोसेसिंग फी ऑब्वियसली आपको अपनी जेब से देनी पड़ती है एंटरप्रेन्योर्स को, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन डिफर करती है. एंड
अगर आप जितने के लिए भी लोन अप्लाई कर रहे हैं, जनरली जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है उसका 50-60% लोन ही आपको सैंक्शन होता है। तो हो सकता है कि आपकी प्लानिंग इससे बिगड़ जाए कि आपको कोई मशीनरी खरीदने के लिए आपको इतने रुपए चाहिए, बट उसका 50-60% ही आपको मिल रहा है. So these are cons. But you know, if you actually see and if you actually weigh the pros with cons, आपको realize होगा कि नहीं, एडवांटेजेस जो है वो वे करते हैं ज्यादा देन डिसएडवांटेजेस, क्योंकि हमेशा अगर आपको इजी प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड मिल रहा है और चीप फंड मिल रहा है, तो वो ऑलवेज बेटर है कि आपको कोई ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में बैंक दे और आपसे बहुत सारे आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत बार चेक हो. तो आई थिंक अगर एक भी एडवांटेज आपको मिलता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए. एंड कॉन्स आर वेरी मिनिमल कॉन्स. इतना अगर किसी को लोन लेने में 45 डेज लग रहा है, बट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस, देन व्हाट्स द हार्म? I would definitely go for such kind of loans. So I think ये एक MSME Act का एक brief मैंने short में आप लोग को दिया है. And if you think you can get benefit from it, as an MSME, you should get registered in MSME Act. सिमिलरली जैसे MSME रजिस्ट्रेशन होता है, गवर्नमेंट के बहुत सारे बेनिफिट्स अगर आप गूगल करेंगे ना, जैसे अभी आपने MSME के बारे में पढ़ लिया, प्लीज गूगल करिए उसके बारे में, उसके अंदर जो जो स्पेसिफिक सब्सिडीज इंडस्ट्री वाइज है वो पढ़िए. सिमिलरली आपको धीरे धीरे यू कम टू वेरियस काइंड ऑफ बेनिफिट्स व्हिच गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग. होता क्या है ना, हमें लगता है कि यार हम इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के इतना सारा कर लिया है, तो शायद हम इतना ध्यान नहीं देते हैं. हमें पता होता है, लेकिन हर एंटरप्रेन्योर इतना सेल्फ अवेयर नहीं है कि वो इन सारे रजिस्ट्रेशंस कराए और उनका बेनिफिट ले. सो दिस अनदर रजिस्ट्रेशन व्हिच इज NSIC रजिस्ट्रेशन, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन. उसके भी ये दिस कम्स अंडर MSME एक्ट ओनली, लेकिन इसके एडेड बेनिफिट्स हैं जो आप लोग को हेल्प कर सकते हैं. बहुत सारे मैंने 2 हाईलाइट किए हैं फॉर योर रेफरेंस, कि अगर आप कोई स्मॉल इंडस्ट्री है जो कि रजिस्टर्ड है NSIC में, तो आपको EMD मनी नहीं पे करना पड़ेगा जब आप टेंडर फाइल करेंगे. सो आजकल बहुत सारे टेंडर्स, मतलब जो भी टेंडर्स आते हैं उसमें जो ऑनेस्ट मनी होती है वो काफी ह्यूज होती है. सो अगर आप NSIC में रजिस्टर्ड हैं तो यू डोंट हैव टू पे दैट. Also, it also provides assistance to small scale industries by taking orders from Government of India owned enterprises and procure these machineries from SSI units registered with them. तो ये भी आपको एक एडेड एडवांटेज मिलता है कि जो गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस के ऑर्डर्स होते हैं वो आपके थ्रू सप्लाई करने का उनका मेन कंसंट्रेशन होता है. सो ऐसे आप जब गूगल करेंगे, यू कैन सी अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ benefits provided by government. There's DSI also, district small industries registration, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. अभी बहुत अच्छा टाइम है कि हम सब घर पे बैठे हैं, हम रीडिंग कर सकते हैं. सो ये मतलब बाकी वेबिनार्स, बाकी नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है, बट खुद को सेल्फ अवेयर करना फॉर द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इज आल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. ओके, सो अगेन बिफोर स्टार्टिंग विद दिस स्लाइड, मेरे को ये क्लैरिटी देना है कि जो अभी गवर्नमेंट के रिलीफ्स आए हैं जितने भी ड्यूरिंग दिस कोरोना क्राइसिस, और अभी जो आएंगे, अगर गवर्नमेंट कुछ रिलीफ देती है, तो वो सिर्फ आपको तब नहीं मिलेगा जब आप MSME एक्ट में रजिस्टर्ड हो, वो आपको एनीवे मिलेगा. बट होता है कि आप एटलीस्ट गवर्नमेंट को के रिकॉर्ड्स में होने चाहिए, गवर्नमेंट आपको ट्रेस कर पाए, तब आपको वो बेनिफिट मिल सकता है. सो अभी जो रिलीफ गवर्नमेंट्स ने दिए हैं टिल नाउ इन 49 days ऑफ लॉकडाउन, आई वांट टू हाईलाइट दोज रिलीफ्स एंड कुछ क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि हम सब ने मोस्टली रिलीफ्स न्यूज चैनल्स में देखे हैं, और न्यूज चैनल में बहुत ही वेक्स और जनरल डेफिनेशन वो लोग पब्लिश करते हैं, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ इनसाइड क्लैरिफिकेशन व्हिच वी शुड फोकस. सो फर्स्ट इज जो SIDBI है, SIDBI is basically Small Industries Development Bank of India. Again, it's a government bank established in 1990. और अगर आप इसके बारे में भी गूगल करेंगे, इसका विजन एंड मिशन देखेंगे, इनका प्योर एजेंडा है कि जो छोटे बैंक्स होते हैं और MSMEs होती हैं, उनको सपोर्ट करना, उनकी फाइनेंसिंग में हेल्प करना. एंड इसके जो शेयर होल्डर्स भी आप देखेंगे, there's Government of India holding 15% share, there's LIC holding shares, there's NABARD फैसिलिटी दी है up to 50 lakh rupees की for a tenure of 5 years without any collateral, and rate of interest is 5%.
बट द कैच हियर इज कि ये फैसिलिटी सिर्फ उन ऑर्गेनाइजेशंस को है जो कि इन्वॉल्व है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट फाइट अगेंस्ट कोरोना। जब ये फैसिलिटी मैंने पढ़ी, मैं बहुत खुश हो गई थी कि शायद आई थिंक वी ऑल कैन एक्सेस टू द लोन्स ऑफ सच काइंड एट 5% इंटरेस्ट, क्योंकि आज के डेट में 5% इंटरेस्ट का कोई भी नहीं देता है। लेकिन there was a clarification कि जो ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट कोरोना वायरस, सिर्फ उनको ये लोन मिलेगा। एंड गुड्स एंड सर्विसेज लाइक सैनिटाइजर्स, पीपी किट्स, मास्क, आपके जो भी मेडिसिन बन रही है, सो इन दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दिस काइंड ऑफ रिलीफ इज प्रोवाइडेड बाय SIDBI. Next is RBI has announced a 3-month moratorium on repayment of term loans installment which are due from 1st March to 31st May 2020. इसका मतलब कि आप इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जो EMI है वो वेव ऑफ हो चुकी है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि आपकी EMI पोस्टपोन हो चुकी है। तो जो भी EMIs आपकी मार्च से लेके मार्च अप्रैल मई तक ड्यू है, वो आप आगे के महीने में देंगे। सो क्लैरिफिकेशन ये है कि इट इंक्लूड्स ऑल लोन्स इंक्लूडिंग होम लोन, पर्सनल लोन्स, एजुकेशन लोन्स, working capital loan. It also includes credit card dues and debit card dues. Interest is not waived off and will continue to accrue on the outstanding amount. Borrower will have to pay additional interest for 3 months by either increasing the amount per installment or number of installments. The longer the remaining tenure, the bigger is the impact. So इसका ये मतलब है कि ये जो चॉइस है कि आपकी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बढ़ा दिया जाएगा जून से, या फिर आपकी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट बढ़ेगी, बैंक टू बैंक डिफर करेगा। ये बैंक का ऑप्शन होगा। और लेकिन जो भी अगर आप अभी डेफर कर रहे हैं अपनी EMI देना बिकॉज ऑफ कैश क्राइसिस या व्हाटएवर इज द इशू, लेकिन आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा इस 3 महीनों का भी, जितने महीने के लिए भी आप अपनी EMI डेफर करें। डेफिनेटली इससे आपकी क्रेडिट स्कोर पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। सो डोंट वरी कि जनरली हमारा सिबिल खराब हो जाता है अगर हम अपना लोन्स टाइमली पे नहीं करते। सो ये इतना सपोर्ट है गवर्नमेंट का कि आपका सिबिल या आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो खराब नहीं होगा। But again, if you can pay your EMIs, then you should pay your EMIs because burden आगे जाके सिर्फ बढ़ेगा। Next is PF share. ये बहुत important है, आप इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, it will contribute 24% of salary, which is 12% employer share and 12% employee share of employees working in firms having up to 100 workers, of which 90% withdraw not more than 15,000 monthly salary. तो ये गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। इसका ये मतलब है कि अगर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप लोग, ऑब्वियसली हम लोग अपने एम्प्लॉयज का PF डिपॉजिट करते हैं, सो PF का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो रेट है दैट इज 12%। 12% एम्प्लॉय शेयर होता है, 12% एम्प्लॉयर शेयर के हिसाब से जो होता है। तो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में 100 वर्कर्स से कम है और उसमें से 90% लोगों की सैलरी 15,000 से कम है, तब जाके जो कंट्रीब्यूशन होगा आपके PF अमाउंट का वो गवर्नमेंट देगी 3 महीनों के लिए। सो आई वाज अंडर द इम्प्रेशन, जब तक कि मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा था, मैंने न्यूज चैनल पे देख के मैंने ये समझा कि मेरी कंपनी का जो PF है वो गवर्नमेंट ही डिपॉजिट करने वाली है फॉर 3 मंथ्स। लेकिन जो हम ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं हमारी तरह, आपकी तरह, वहाँ पे मेजरली हमारी सेल्स टीम होती है, सर्विस टीम होती है। सो हमारे ऑब्वियसली एम्प्लॉयज आर विड्रॉइंग सैलरी, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज आर विड्रॉइंग सैलरी more than 15,000 rupees a month. तो अगर ये कह रहे कि अगर आपकी एम्प्लॉइज 10 है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो 9 एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से कम होनी चाहिए, तब ये रूल आप पे एप्लीकेबल होगा, तब ये PM गरीब कल्याण योजना आपके में एप्लीकेबल होगी। सो आप प्लीज देख लीजिए, अगर आप लोगों ने अभी तक PF मार्च मंथ का नहीं जमा कराया है, देन यू शुड, टू अवॉइड एनी फर्दर इंटरेस्ट बर्डन। Next is a very good point, withdrawal of non-refundable advance by EPF members in the wake of COVID-19. इसका ये मतलब है कि जैसे अभी एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे, एंड इवन वी वांट टू, लेकिन हम लोग के भी हाथ अभी टाइड अप हो सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन बहुत लंबा चलता जा रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं है। सो एक एम्प्लॉयर के लिए भी टफ होता जा रहा है कि वो कब तक हेल्प कर पाएगा। सो गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया एम्प्लॉयज को कि आप लोग की अपनी PF अकाउंट है, आप उसमें से अपना पैसा निकालिए और अपनी फैमिली को सपोर्ट करिए। जनरली रूल ये होता है कि कोई भी एम्प्लॉय जब 54 इयर्स का हो जाता है तभी वो अपना PF निकाल सकता है, या फिर अगर वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है 1 महीने तक, तब वो उसके बाद अपना PF अकाउंट एक्सेस कर सकता है अपना PF अमाउंट निकालने के लिए, वरना डे टू डे वर्किंग में ही कैन नॉट विथड्रॉ द मनी। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि आप 3 महीने तक अपना PF अमाउंट निकाल सकते हो। सो आई थिंक यू शुड
टेल योर एम्प्लॉइज दिस थिंग कि आप कोशिश कर रहे हो, आप हर कोशिश कर रहे हो उनको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन आपके लिए भी उतनी ही टफ सिचुएशन है। इस इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड में हर इंसान सफर कर रहा है। सो आई थिंक एम्प्लॉइज को इट्स हाई टाइम कि वो खुद के पैसे यूज करें टू सपोर्ट देयर फैमिलीज, so they don't go in hunger times. Next is the center has rightly already permitted delayed GST payments until June 2020 and without levy of interest, late fees or penalties. Again, इसमें clarification है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है जिन भी कंपनीज के टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उन लोग को जीएसटी जून तक डिले कर दिया उन्होंने, एंड उन लोगों को इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी पे करने की जरूरत नहीं है। अगेन जीएसटी माफ नहीं किया है, जीएसटी को डिले किया है, डेफर किया है। और आपको लेकिन जो इंटरेस्ट आप अगर डिले डिपॉजिट करते हो जीएसटी का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 18%, लेट फी होती है उसमें 25 रुपीज पर डे के हिसाब से, पेनल्टी लगती है 100 रुपीज पर डे के हिसाब से। तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगेन इफ यू रीड फर्दर, for bigger companies late fee and penalty will not apply, but interest at a reduced rate of 9% will be charged. So मुझे ये पॉइंट पढ़ के ऐसा लगा कि I felt like a crunch sandwich between the shooting liabilities and cash crisis, because liability बढ़ती जा रही है क्योंकि हर चीज में हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, और उधर से कैश क्राइसिस बहुत अलग लेवल पे बढ़ता जा रहा है। सो आई डिड नॉट लाइक दिस पॉइंट व्हिच इज प्रोवाइडेड रिलीफ प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। आई थॉट कि गवर्नमेंट को ज्यादा कंसंट्रेशन करना चाहिए कि कैसे टैक्स को माफ कर दे, कि आप टैक्स मत जमा कराओ, बट आई थिंक गवर्नमेंट अभी भी कॉन्सेंट्रेट कर रही है इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी में, वो भी इंटरेस्ट भी उन्होंने वेव ऑफ नहीं किया है फॉर दी एंटरप्रेन्योर्स हैविंग टर्नओवर मोर देन 5 करोड़। सो प्लीज अगर आपको जीएसटी ड्यू है, आप अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए। दो गुड न्यूज इज अप्रैल मई में तो सेल ज्यादा हुई नहीं है, बट किसी का मार्च का भी अगर जीएसटी बचा हुआ है तो इट्स बेटर कि आप उसको डिपॉजिट करा दें टू अवॉइड एनी इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी। हम में से ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी सब घर पे है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत यूज हो रही है, एसीज चल चुके हैं हर जगह, लेकिन not everyone is in the position to pay electricity bills now to the discom companies, जो distribution companies होती हैं। So उस कारण distribution companies जो generation electricity generation companies होती है उनको पे नहीं कर पा रही है, तो उनकी liquidity position क्योंकि discom की बहुत ज्यादा हिल गई है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो भी जनरेशन ट्रांसमिशन कंपनीज हैं, दे विल कंटिन्यू टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी इवन टू डिस्कॉम्स जिनकी लार्ज आउटस्टैंडिंग हो चुकी है। मतलब अगर लॉकडाउन आप देखें, लॉकडाउन में जो जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनीज हैं, दे आर वर्किंग 24 hours to provide electricity to all of us. So it's a very appreciable move, and it's a very necessary move. It's kind of administrative relief provided by government to us. एंड इवन डिस्कॉम्स को भी एक रिलीफ मिला है कि उनके जो पेमेंट्स है 31 मई तक जो उनको जनरेशन कंपनीज को देने हैं वो 50% तक हो जाएंगे। सो इस तरीके से सब अपना अपना काम कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इज, अगर आप देखें कि इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस तो इतना कोई खास अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से आया नहीं है। दो आप लोगों ने बीच में न्यूज सुनी होगी कि आरबीआई ने लोन्स मतलब फंड अलोकेट किया है बैंक्स को, बट ग्राउंड रियलिटी ऑफ दैट इज कि आरबीआई ने तो फंड्स अलोकेट किए बैंक्स को, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई भी रिलीफ नहीं दिया है प्रोविजनिंग के टर्म्स में। तो बैंक्स भी बहुत रिलक्टेंट हो चुके हैं वो फंड आगे बिजनेसेस को प्रोवाइड करने में, क्योंकि बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है बिजनेस को लेके। दे डोंट नो कि वो लोग रीपे कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, एंड एनपीए बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो बैंक्स, और अगर मैं एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी बताऊं तो बैंक्स अभी कोई भी लोन नहीं दे रही है इजीली, लेकिन फिर भी लेट्स सी हाउ गवर्नमेंट कम्स अप टू दिस। लेकिन जो जैसे कुछ गवर्नमेंट बैंक्स है जिन्होंने अपना कोविड इमरजेंसी लाइन क्रेडिट स्कीम्स निकाले हैं, जैसे कि एसबीआई है। एसबीआई ने अनाउंस किया है कि आप बोरो कर सकते हैं एसबीआई से मैक्सिमम लोन अमाउंटिंग 200 करोड़ और 10% ऑफ द एग्जिस्टिंग फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल, एंड जो फैसिलिटी है ये 30 जून तक अवेलेबल है, एंड आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.25%। सो मेरी ये जो इसकी एलिजिबिलिटी है कि आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट होना चाहिए एसबीआई में, अगर आपका है तो आपको ये लोन मिल सकता है। लेकिन जो इसके रीपेमेंट टर्म्स है दे आर वेरी कम्बरसम, जैसे कि आपको इसका रीपेमेंट टर्म्स है कि आपको 6 महीने तक मोरेटोरियम है, आप आज लोन लो, आपको 6 महीने तक कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आफ्टर दैट यू हैव टू पे एवरीथिंग इन 6 इंस्टॉलमेंट्स, तो विद इंटरेस्ट।
सो ये थोड़ा स्कैरी है, लेकिन फिर भी अगर आपका SBI में अकाउंट है, प्लीज टॉक टू बैंक पीपल, प्लीज सी हाउ यू कैन अवेल दिस लोन इफ यू रिक्वायर टू मैनेज योर वर्किंग कैपिटल, टू मैनेज योर कैश क्राइसिस। दो आई नो द ग्राउंड रियलिटीज बैंक्स अभी डिस्पर्स नहीं करे, तो मुझे पता चला अभी 3 दिन पहले ही SBI ने अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर्स को 5 लाख रुपीज का लोन दिया है एट 8% आई थिंक रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दो 5 लाख इज नथिंग फॉर बिजनेस हाउसेस, लेकिन जो ये स्कीम है कि अप टू 200 करोड़ तक आप लोन ले सकते हो, इस पे इतना एक्टिवली वर्क नहीं हो रहा है। बट आप अगर कंटिन्यूसली बैंक से बात करते रहोगे, टच में रहोगे, तो ये जो फैसिलिटी है दिस इज अवेलेबल टिल 30th जून। सो हो सकता है कि अगर ये एक्चुअल में गवर्नमेंट इस पे कोई एक्शन ले ले तो बैंक्स भी एक्टिव हो जाए लोन देने में और आपको ये लोन इजिली मिल सके। सो आई थिंक यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस, यू शुड टॉक टू योर बैंक पीपल एंड यू शुड इंश्योर कि आपको अगर लोन की रिक्वायरमेंट है, 30th जून तक ये फैसिलिटी है, तो आपको ये कैसे मिल सकता है। सिमिलरली ये एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्कीम है। अगर आपका अकाउंट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, आपकी एलिजिबिलिटी की आपके एग्जिस्टिंग वहाँ पे वर्किंग कैपिटल लिमिट है, CC लिमिट है, तो आपको ये लोन मिल सकता है। मैक्सिमम 50 CR का लोन आपको मिल सकता है। इनका पर्पस ही है कि उनको भी पता है कि सब लोग अपने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्राइसिस से गुजर रहे हैं। सबको मतलब ऐसा है कि आपकी कैश आ नहीं रहा है, लेकिन आपकी लाइबिलिटीज बढ़ती जा रही है टाइम टू टाइम। तो ऑब्वियसली आगे जाके लोगों को अपनी वर्किंग कैपिटल मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। सो इसलिए दीज काइंड ऑफ फैसिलिटीज गवर्नमेंट बैंक्स आर प्रोवाइडिंग। इसमें आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हैं, इट्स 8%, अगेन वेरी गुड रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड इसके रीपेमेंट चार्जेस थोड़े से रिलैक्स्ड है, यू कैन रिपे लाइक इन 36 मंथ्स एंड विद इंटरेस्ट, सो ये थोड़े से रिलैक्स्ड है। सिमिलरली इंडियन बैंक स्कीम ने भी ये स्कीम निकाली है। इन सब की स्कीम्स का नाम है कोविड इमरजेंसी लोन। सो यू इफ यू गूगल एंड यू सी, तो आपको ये लोन्स के डॉक्यूमेंट्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। बट कंडीशन है कि इन बैंक्स में आपका अकाउंट होना चाहिए। प्राइवेट बैंक्स ने तो अभी तक कोई मेरे हिसाब से इमरजेंसी लोन्स नहीं निकाले हैं। सो इसकी भी एप्लीकेबिलिटी आप देखेंगे तो जिनका एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल लिमिट, कॉम्पोजिट लोन लिमिट है विद उनके साथ, वो ये लोन ले सकते हैं। एंड इसकी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी लेस, 8.75%। जो रीपेमेंट पीरियड है दैट इज ऑल्सो गुड, मैक्सिमम 36 मंथ्स है, आप कर सकते हैं 60 मंथ्स तक आप इसको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। अगेन जो मैं मॉरिटोरियम बोल रही थी, जो SBI बैंक में अवेलेबल था कि आप 6 महीने तक आप लोन लो, 6 महीने तक आपको लोन पे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको इंटरेस्ट के साथ फॉर मॉरिटोरियम पीरियड आप अपनी EMI स्टार्ट कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड स्कीम। आई होप गवर्नमेंट थोड़ी बैंक्स को बैकिंग दे, जिससे कि बैंक्स भी इतना डरे ना और बैंक्स भी हम सबको थोड़ा खुल के लोन्स दे पाए, बिकॉज इट्स वेरी वेरी अर्जेंट। ऑल्सो आई मिस्ड वन पॉइंट इन दिस स्लाइड। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहती हूँ कि जो राजस्थान गवर्नमेंट है, उन्होंने ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिसीजंस आए हैं। सो राजस्थान गवर्नमेंट का ये डिसीजन है कि आप अपने जो मार्च और अप्रैल के इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आप उसको डेफर कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। यू कैन पे बाय 31st May, इवन वाटर बिल्स ऑल्सो। सो अगर आपको लग रहा है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल ड्यू है मार्च और अप्रैल का, यू कैन डेफर इट टू मे। अगेन वेव ऑफ कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप डिले कर रहे हैं चीजें कि आपके पास बाद में अगर कैश आता है तो तब आप पे कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट कि अब एक्सपेक्टेशंस क्या है गवर्नमेंट की। आप लोग को आई थिंक पूरी स्लाइड्स में रियलाइज हुआ होगा कि यस, MSMEs आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। यस, MSMEs को रिलीफ पैकेजेस की बहुत जरूरत है, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आर ऑन द वर्ज ऑफ शटिंग डाउन अगर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस या फिर लेबर असिस्टेंस नहीं मिली, क्योंकि बहुतों के लेबर्स हैं जो बाहर चले गए हैं, अपने अपने सिटीज में मूव कर लिया है। फाइनेंशियली कंपनीज आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड। तो अगर इतने सालों तक गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है MSMEs को, सो नाउ इज द टाइम कि जब इतना जो क्राइसिस आया है कंट्रीज पे, तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। दो बहुत सरप्राइजिंग है कि अभी तक गवर्नमेंट का कोई रिलीफ पैकेज आया नहीं है, बिकॉज अक्रॉस वर्ल्ड ऑल द गवर्नमेंट्स हैव प्रोवाइडेड सम रिलीफ पैकेजेस टू द इंडस्ट्रीज, बिजनेस हाउसेस ऑपरेटिंग इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। लेकिन अगर मैं बोलूं कि क्या मैं एक्सपेक्टेशन करती हूँ गवर्नमेंट से, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए गवर्नमेंट से।
क्योंकि यू नेवर नो कि वो रिलीफ पैकेज आएगा नहीं आएगा, बट अगर आप सोच के बैठ जाओगे कुछ ना कुछ आएगा तो देन योर माइंड स्टॉप्स थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन. The only thing as of now you should concentrate is how to liquidate your stock. Just concentrate कि कैसे आपका जो स्टॉक पड़ा है आप उसको लिक्विडेट करें. आप कॉन्सेंट्रेट, अभी जैसे आपका आपने रियलाइज किया होगा वर्किंग कल्चर जो आपके ऑफिस का है वो काफी बिगड़ गया है, क्योंकि एक तो यू आर नॉट एबल टू पे एवरीबडी फुल सैलरी, देन देयर आर हाफ पीपल हु आर वर्किंग, तो आप चाह रहे हो कि आप उनको सपोर्ट करो, आप उनको सैलरी दे रहे हो एंड अदर हाफ को आप नहीं दे रहे हो. तो वर्किंग कल्चर बहुत डिस्प्यूटेड हो गया. जैसे मैंने एक न्यूज पढ़ी थी साउथ इंडिया में एक कंपनी में फैक्ट्री में सारे वर्कर्स ने आके बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया, बहुत ज्यादा पत्थरबाजी हुई है वहां पे. तो इस तरीके की सिचुएशन कैन अराइज इन अदर कंपनीज ऑल्सो, क्योंकि सबको हर इंसान को लग रहा है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, और एम्प्लॉयज को तो ये लगता है कि सेठ जी की प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, उसको सैलरी मिल रही है तो मेरे को भी मिलनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है, हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं. तो आपको इस टाइम पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि आप अपने बेस्ट रिसोर्सेज को कैसे रिटेन कर सकते हो, और जो रिसोर्सेज आपको लगता है कि दे आर नॉट वर्किंग, आई थिंक ये आप लोग की पर्सनल चॉइस है कि आप उनको रिमूव करना है नहीं करना है, बट जस्ट थिंक फ्रॉम योर कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू. Another thing is आप अपने existing customers को कैसे retain कर सकते हो. See, your customer is also struggling. उसके पास भी पैसे नहीं है आपको देने को, लेकिन इस टाइम पे अगर आप बातों के थ्रू उनसे कनेक्शन बना के उनको रिटेन कर सकते हो, एक दूसरे के साथ मिलके अगर हम काम कर सकते हैं तो डेफिनेटली जो आपके इतने सालों के कनेक्शंस है वो रिटेन आप कर पाओगे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट से तो ठीक है जो एक्सपेक्टेशन है वो आएगा नहीं आएगा कुछ पता नहीं है, बट आप अपने लिए कैसे आप जब भी मार्केट खुलता है कैसे आप नई सर्विसेज सोच सकते हैं कि ऐसी क्या सर्विसेज हो सकती है जिसके बिना कोई भी कंपनी रन नहीं कर सकती. तो अगर मैं वो अभी प्रोवाइड करूंगा तो पीपल विल बाई इट. सो यू नो इन्वेस्ट योर टाइम इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स. आप खुद को अवेयर करिए कि क्या क्या रजिस्ट्रेशन मुझे गवर्नमेंट के साथ कराने हैं जिससे मुझे बेनिफिट्स मिल पाए. जो भी एग्जिस्टिंग अभी तक उन्होंने गवर्नमेंट ने बेनिफिट्स दिए वो अगर अभी तक मैंने नहीं उठाए तो दिस इज द राइट टाइम कि मैं उस बेनिफिट्स को उठाऊं. सो आई थिंक कॉन्सेंट्रेट मोर इन दैट डायरेक्शन. अदरवाइज बहुत सारे फोरम्स है जिन्होंने गवर्नमेंट को पिच किया है कि हमें एमएसएमईज को रिलीफ पैकेज की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है. तो मैंने वहां से कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं. सो द फोरम्स जो रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशंस है एमएसएमई की, दे आर एक्सपेक्टिंग कि टैक्स वेवर हो, इंटरेस्ट वेवर हो. पोस्टपोन करना, डेफर करना इज नॉट द सोल्यूशन. अल्टीमेटली एंटरप्रेन्योर को कॉस्ट झेलनी पड़ेगी. सो अगर गवर्नमेंट कुछ महीनों के लिए टैक्स को वेव ऑफ कर दे, इंटरेस्ट वेव ऑफ कर दे, तो इट विल बी अ वेरी वेरी बिग हेल्प. एक्सटेंड करनी चाहिए क्रेडिट फैसिलिटी एट लोअर इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल फ्री बैक बाय द गवर्नमेंट. आरबीआई ने, आपने न्यूज डेफिनेटली देखी होगी, आरबीआई ने जो लोन्स बैंक्स को मनी ट्रांसफर किया है, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गवर्नमेंट बैकिंग बैंक्स इतने इंटरेस्टेड नहीं है लोन्स वो कस्टमर्स को देने के लिए. सो आई थिंक गवर्नमेंट को स्टैंड अप करना चाहिए इस पॉइंट पे एंड उनको बैकिंग देनी चाहिए ताकि क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंड हो सके एमएसएमईज को. जितने भी ये बातें बहुत टाइम से न्यूज चैनल में भी आ रही हैं कि यू नो ऑनली गवर्नमेंट्स एंड पीएसयूज आर डायरेक्टेड कि वो रिलीज करे जो भी पेमेंट है आपके कंपनीज के ड्यू है एमएसएमईज के. दो मेरे भी काफी पेमेंट ड्यू है गवर्नमेंट और पीएसयूज में. अभी तक मुझे ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि मेरा पेमेंट जल्दी से जल्दी रिलीज हो सकता है, बट दिस इज द एक्सपेक्टेशन दैट एटलीस्ट हमारे पैसे बहुत ज्यादा गवर्नमेंट में फंसे रहते हैं, सेफ होते हैं लेकिन फंसे रहते हैं लंबे टाइम के लिए. तो उनको गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी रिलीज कर दे ताकि फ्लो ऑफ मनी मिले एंटरप्रेन्योर्स को. देन जो मॉरिटोरियम दिया है अभी 3 months का, इट शुड बी मिनिमम 6 months, क्योंकि लॉकडाउन ओवर होता हुआ दिख नहीं रहा है, चीजें क्लियर होती हुई दिख नहीं रही हैं. सो अगर मेरा बैंक ही कह रहा है कि आपका मैं ऑटो डेबिट कर दूंगा इंटरेस्ट ऑन 31st May, तो मैं दिस इज मे, सो आई कांट इमेजिन कि मैं 31st May को कहाँ से पैसा लाऊंगी कि मेरा इंटरेस्ट आप ऑटो डेबिट कर दो. FICCI is another association जो MSME को रिप्रेजेंट करती है. उन्होंने सॉर्ट किया है ग्रेटर रेगुलेटरी फोरबियरेंस इंक्लूडिंग चेंज इन एनपीए डेफिनेशन एंड लोन स्ट्रक्चरिंग. सो बेसिकली बैंक्स की गाइडलाइन होती है कि इतने टाइम तक अगर लोन पे नहीं किया तो आपका एनपीए में डाल देते हैं, उससे आपकी क्रेडिबिलिटी सब बिगड़ जाती है. तो इस टाइम पे जब एक्चुअल में कोई भी अपना लोन पे करने की पोजीशन में नहीं है, सो वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट कि वो एनपीए की डेफिनेशन चेंज करे, उसको लॉन्गर पीरियड के लिए एक्सटेंड करे ताकि
जब जैसे जैसे चीजें improve होगी, we'll be able to repay our loans. So I think main जो most immediate concern है, जो मेरा भी agenda था आप लोगों तक communicate करने का, that is कि currently on the minds of MSME are cash flow and working capital crisis. Most are concerned that survival is only possible with the substantive financial and fiscal support package from government specific to MSME segment. लेकिन कुछ MSMEs को ये भी लगता है कि फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है वो इनफ होगा, लेकिन कुछ को लगता है कि जो कोविड-19 है वो एक वेकअप कॉल है टू चेंज एंड इम्प्रूव डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एमएसएमई ऑपरेशंस एज वेल एज द एमएसएमई इकोसिस्टम. एक जिस तरीके से एक लाला साहब की तरह बहुत सारी एमएसएमईज काम करती आ रही थी इतने सालों से, उसको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक वेकअप कॉल है कि आप खुद की वर्किंग को चेंज करिए, इम्प्रूव करिए, खुद को सेल्फ अवेयर करिए और एक स्मार्ट एंटरप्रेन्योर बनिए. So in the end, I want to conclude my webinar with the thought, कि और ये thoughts आप बहुत relate भी कर पाएंगे कि जब हम खुद ही कोई problem में फंसते हैं और सिर्फ खुद की help करने की कोशिश करते हैं, तो by ourselves we sometimes suffer grave limitations. लेकिन but together we can overcome anything. तो ये टाइम है कि सब सारे entrepreneurs, सारी कंपनी जीरो पे आ गई हैं, हम सब लाइन 1 से स्टार्ट करने वाले हैं. तो जो भी हमारा नेटवर्क एरिया है, हमारे कनेक्शंस है, अगर हम सब मिलके एक दूसरे को हेल्प करके, लाइक इशरे इज अ वेरी बिग कम्युनिटी ऑफ प्रोफेशनल्स, सो वी ऑल वर्क टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर. सो आई थिंक हम इस सिचुएशन से भी बाहर निकल पाएंगे एंड वी कैन बिल्ड अगेन द एंटरप्राइज ऑफ आवर ड्रीम्स. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड ओवर टू यू Kishan. So now we will have a question and answer session. And Ram sir, would you like to take the questions, please? Yes. Please, sir. Thank you, ma'am. Yeah. Hello, there sir. is a yeah. Hello. There is a question from Kailash Gupta. Most of countries have given huge stimulus to private sector, but nothing announced in India. They should at least waive off interest on loan for this period and release all pending payments due on supplies made by MSMEs, and also quick GST and IT refund. I think there is this. I think he has suggested some to put on these authorities. Yeah, definitely कैलाश. तो जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारी एसोसिएशंस जो एमएसएमई को रिप्रेजेंट करती है, फिक्की वन ऑफ देम, देयर इज एमएसएमई एसोसिएशन आल्सो, सबने गवर्नमेंट को पिच किया है, लेटर्स लिखे हैं. एमएसएमई जो अपनी मिनिस्ट्री है उसको लेटर्स लिखे हैं, और सेम जो आपने पॉइंट्स बोले कि इंटरेस्ट, आपका टैक्सेशन, ये सब वेव ऑफ करना चाहिए, और ये जो भी आपने सजेशंस बोले हैं ये सब गवर्नमेंट को पिच किए हैं. और यही मैं बोल रही हूँ कि बहुत सरप्राइजिंग है कि अभी तक गवर्नमेंट ने क्यों कुछ अनाउंस नहीं किया है. सब वेट ही कर रहे हैं कि अब गवर्नमेंट को अनाउंस कर देना चाहिए ताकि थोड़ी एंजाइटीज कंट्रोल हो, थोड़ा वी कैन प्लान कि अगर ये बेनिफिट्स हमें मिलते हैं तो हम आगे कैसे प्रोग्रेस करें. I read one tweet of Nitin Gadkari that they are planning MSME package and they will announce very soon. So let's hope that something comes up very soon. Thank you. There is a KK Vijay asking, does service providers will also get benefits of concessional electricity if registered under MSME? Yes, you will. So MSME में दो enterprises register कर सकती. One of them is जो service enterprises होते हैं, जो service provide करते हैं किसी भी form में. तो अगर आप उसमें registered हैं, आपको MSME certificate मिलता है, तो आपको electricity department का application लिखने की जरूरत है, and then you can get the concessional rates. There is another question from Mr. Kailash Gupta. In Rajasthan, MSME Council should be approached and all bodies should represent to release MSME payment on priority to maintain cash flow. Yes, definitely. I think जो ये सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, we all are, most of you guys are very experienced entrepreneurs और बहुत बड़ी पोजीशन पे भी हैं. So I think together after this webinar we should have a chat once, and even we can write to the ministry and MSME council कि हमारी क्या ask है, because हर
पूरे इंडिया में हर फोरम अपना अपना पॉइंट पुट अप कर रहा है, तो हमें भी करना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। ये जो MSME के पेमेंट्स ड्यू है गवर्नमेंट से, एटलीस्ट वो तो रिलीज होनी चाहिए। There is a question from Mr. Akash Vajpayee, our past president also. Can consulting firms be registered with MSME? What are the advantages for them apart from concession on bidding fee for tenders? ओके सर आकाश सर, अगर आप वैसे यू कम अंडर Akash, प्रोवाइडिंग Akash, he has left now, but it will be beneficial for others also. Yeah. ओके सो अगर आप कंसल्टेशन देते हैं तो इन अ वे आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप रजिस्टर हो सकते हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स, आपको इजी एक्सेस टू लोन मिलेगा, आपको टेंडर्स में हेल्प मिलेगी, आपको इलेक्ट्रिसिटी फी जो आपके ऑफिस की है वो कम हो जाएगी, आपके ISO जो सर्टिफिकेशन जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए। उसके अलावा भी आप प्लीज MSME एक्ट पढ़िए, आप PDF फाइल है, आप गूगल पे इजीली सर्च कर सकते हैं, जस्ट सर्च योर नेचर ऑफ बिजनेस इन दैट, you'll get to see a whole list of exemptions and subsidies provided by government to your specific industry, to your business. So उस तरीके से आपको अपने specific industry या specific services के बारे में क्या facilities है वो पता चल पाएंगी। Okay, ma'am. There is a question from Mr. Sanjeev Kumar. One offer of MSME confirmed that non-NSIC registration not now as now MSME come into effect. Is it right? Can you please repeat the question? One offer of MSME confirmed that now NSIC registration not now as now MSME come into effect. हाँ सर, ये जरूरी है कि NSIC के रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास पहले MSME का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दो मेरे को आपका थोड़ा स्टेटमेंट ढंग से समझ नहीं आया, बट आफ्टर दिस वेबिनार वी कैन कैच अप। लेकिन मैंने भी ये पढ़ा है कि MSME रजिस्ट्रेशन पहले जरूरी है, देन यू कैन गो फॉर NSIC रजिस्ट्रेशन। Mr. Rohit Soni asking about what are the bases for deciding loan amount? सर लोन अमाउंट में ना, जब आप अप्लाई करेंगे बहुत सारी क्रेडिबिलिटी चेक होती है। मुझे एक बैंक से पता चला था कि आपके पास एग्जिस्टिंग CC लिमिट नहीं होनी चाहिए और आपकी जो क्रेडिट स्कोर है वो भी एक लेवल पे अच्छा होना चाहिए। क्रेडिट स्कोर यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, लेकिन ये बैंक टू बैंक डिफर करता है कि वो किस तरीके से आप क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं। दे गोइंग टू आस्क यू ऑल योर रिटर्न्स ऑफ इनकम टैक्स, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो लोग चेक करेंगे, और थोड़ा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो चीजें थोड़ी स्लोली होंगी और बहुत सारा पेपर वर्क विल बी रिक्वायर्ड। सो काफी सारी अलग अलग क्राइटेरियाज होती है। लोन अमाउंट आप जैसा मैंने कहा कि जनरली 50 to 60% ही लोन सैंक्शन होते हैं, द ग्राउंड रियलिटी इज दैट। तो आप जितने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना प्लानिंग उस हिसाब से कीजिए कि अगर मुझे 60% लोन मिलता है तो विल इट सफाइस। बाकी बैंक आपका क्रेडिबिलिटी चेक करेगी, उनके खुद के मेजर्स हैं, बट फ्यू ऑफ द मेजर्स इज आपके कुछ रेशियोज वो लोग चेक करते हैं, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के, आपकी क्रेडिट स्कोर चेक करेंगे, एंड आपका आई थिंक CC लिमिट नहीं होना चाहिए। ये भी मैंने एक बैंक से सुना है, बट अदर बैंक्स में ऐसा नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। Thank you, ma'am. There is a question from Pinkesh Kumawat. Is there any buyer protection in MSME Act like? सर बायर प्रोटेक्शन MSME एक्ट में ऐसा ये होता है कि आप, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। Is there any buyer protection in MSME Act like if any MSME supplier supplied poor quality material and bad service, then how a buyer can sue the MSME enterprises with this act? या सो ये जो फैसिलिटी है टू सू अदर पार्टी, ये हर आई थिंक बिजनेस हाउस के पास होती है। सो MSME में जैसे मैंने बताया कि MSME विल गो टू MSME काउंसिल, MSME काउंसिल विल डू द मीडिएशन बिटवीन द बायर एंड द सेलर। सो उस पॉइंट पे बायर
अपने पॉइंट्स रख सकता है कि ये इशू थे इसलिए मैंने नहीं पे किया, या जो भी इंटरेस्ट रेट इशू था, then they can further challenge the case in high court. जब अपना अगर MSME council अपना केस arbitration को दे सकता है, तो buyer can further file the litigation and अपना केस हाई कोर्ट में फाइल कर सकता है। तो ये सारी लिटिगेशन प्रोसेस चलती रहती है। तो इसलिए अगर लिटिगेशन में नहीं पढ़ना है तो इट्स बेटर कि हम जो पेमेंट प्रोसेस है उसको नॉर्मल रखें और पेमेंट टाइमली हो जाए। इसलिए बायर्स मोस्टली MSMEs को टाइमली पेमेंट कर भी देते हैं। Okay, ma'am. There is a question from Mr. Mahesh Sharma. I want to start new manufacturing business for FMCG products and register for MSME. Is it right time to do so, or should I wait for due time? So I am being absolutely no expert to tell you what is the right time. लेकिन अभी अगर आप अपनी आपको लगता है कि आपका मार्केट, जो भी आप जिस भी चीज का प्रोडक्शन करना चाहते हैं उसका मार्केट अवेलेबल होगा फॉर नेक्स्ट 1 year, देन आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। और जो भी न्यू एंटरप्राइज खुद को स्टार्ट करती है, MSME उनको फुल सपोर्ट देती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ मशीनरी असिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी असिस्टेंस। तो ये आप प्लीज डिसाइड करिए कि क्या 1 साल तक उस प्रोडक्ट का मार्केट हो सकता है, देन आप प्लीज इस MSME में रजिस्टर करा के आप गवर्नमेंट ऑफिशियल से असिस्टेंस के बारे में हेल्प ले सकते हैं। Thank you. There is a question from Miss Glory Srivastav. What types of companies can come under MSME like consultants? मतलब MSME जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, आज की डेट में अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या सर्विसेज इंडस्ट्री, कंसल्टेंट्स सर्विस इंडस्ट्री में आते हैं, तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट एंड मशीनरी में वो अप टू 10 लाख है जो मेरी साइड में आया था, देन अप टू 2 CR है या 5 CR है, तो अलग अलग कैटेगरीज होती है, माइक्रो इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री में आप उसमें रजिस्टर हो सकते हैं। जनरली जो जैसे मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज अबाउट 10 लाख, सो आई कम अंडर स्मॉल एंटरप्राइज। सो इस तरीके से आप भी खुद को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से चेक कर सकते हैं कि आपकी सर्विसेज का कहाँ पे आप एलिजिबल हो रहे हैं, एंड देन यू कैन गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। There is a question from Mr. Sanjeev Kumar. Should I also register my company at FICCI, turnover with around approx 5.5 CR? FICCI. So he has asked about FICCI, right? Yeah. अच्छा सर, FICCI वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब कंपनीज को प्रमोट करती है। मैंने उसके बारे में इतना मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। आई थिंक आई कैन कम बैक टू यू ऑन दिस आफ्टर वेबिनार फॉर श्योर। लेकिन FICCI में मैंने अभी तक कोई टर्नओवर क्राइटेरिया नहीं देखा है, सो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार चेक करनी पड़ेगी सर। Okay. There is a question from our ISHRE North RD, Mr. Tapan Basu. Is MSME helps in any foreign collaboration in manufacturing? Yes, absolutely. फॉरेन कोलैबोरेशन इस तरीके से होता है कि अगर गवर्नमेंट आपको मौका दे कि आप जो भी इंटरनेशनल फोरम्स है आप उसमें पार्टिसिपेट करिए, एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करिए, आपको इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, कोई भी कोलैबोरेशन पॉसिबल है थ्रू नेटवर्किंग। सो गवर्नमेंट वो असिस्टेंस देती है एंड उस असिस्टेंस को यूज करके आप इंटरनेशनल लेवल पे भी खुद को एक्सपैंड कर सकते हैं। इवन गवर्नमेंट विल सपोर्ट यू मशीनरी वाइज, फाइनेंशियल वाइज ऑल्सो टू एक्सपैंड इन फॉरेन कंट्रीज। There is a question, another question from Mr. Sanjeev Kumar. MSME officers was saying like that no need of NSIC registration if registered in MSME. I think my question is understandable now. He is from Noida. आपकी आवाज कट गई है सर, एक बार वापस से रिपीट कर दीजिए। MSME officer was saying like that no need of NSIC registration if registered in MSME. I think my question is understandable now. Okay. He is from Noida basically. Okay. सर ये
ये दिस आई हैव टू चेक। वैसे मेरे को जो मेरी जिनसे मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, उन्होंने अपना MSME रजिस्ट्रेशन भी कराया है, NSIC रजिस्ट्रेशन, DSI रजिस्ट्रेशन भी करा रखे हैं। सो और थोड़ा NSIC का प्रोसीजर भी डिफरेंट है रजिस्टर कराने के लिए, और NSIC नंबर भी अलग से आता है आपको। MSME रजिस्टर कराने से गेट यू उद्योग आधार। तो आई थिंक रजिस्ट्रेशन तो जरूरी है, लेकिन अगर मे बी अगर कोई रिसेंट चेंजेस आया तो दिस आई हैव टू चेक वंस। I'll come back to you on this. One another question, and very useful for I think all, from Mr. Sanjeev Kumar also. Please let us know what is the best way out if any service provider and good taker and not given our payment since 3-4 years despite assurance. What and how should take action? सर अगर आप MSME में रजिस्टर्ड हैं तब तो जो मैंने प्रोसीजर्स बताए हैं वो आप उसको MSME काउंसिल को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ऑल्सो देयर इज एन इंसॉल्वेंसी एक्ट। अगर जो आपने जिसको सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, इफ ही हैपेंस टू बी अ कंपनी या फिर वो कंपनी है, तो आप उस पे केस फाइल कर सकते हैं, एंड विद इन 6 मंथ्स अगर वो कंपनी पैसा नहीं करती है तो उस पे इंसॉल्वेंसी का चार्जशीट फाइल हो जाता है, एंड उस कंपनी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होना पड़ता है। तो ये एक फैसिलिटी है। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन वन ऑफ द लॉयर टोल्ड मी अबाउट दिस, बट दैट जिसको आपने सर्विसेज प्रोवाइड की वो प्रोप्राइटरशिप है, तब ये रूल अप्लाई नहीं होता है। वो कंपनी होनी चाहिए, तो आप उसमें इंसॉल्वेंसी एक्ट का जो नया आया है, जो कि बहुत यूजफुल है, बहुत कंपनीज यूज करिए अपना पेमेंट निकालने के लिए, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। वो आप एक लॉयर से जरूर बात करिए उसके बारे में। थैंक यू मैम, ये लास्ट क्वेश्चन था, और मैं आशा करता हूं कि हमारे जितने भी अटेंडीज हैं जिन्होंने क्वेश्चन पुट किए थे उनके आंसर्स उनको मिल चुके हैं। और मैं अब अमित कक्कड़ साहब को इनवाइट करूंगा फॉर वोट ऑफ थैंक्स। अमित सर। Thank you Surbhi for such a nice webinar, and thanks to Mr. Kishan, Ram and Gaurav and Jaipur team for organizing such a wonderful topic, and really I am very much thankful to our panelist Ms. Surbhi, because she was very instrumental in explaining about the MSME Act, about the MSME Council, and what's the difference which exists between the different companies registered under MSME and traders. And she has clarified the classifications of MSME also, and have elaborately defined the benefits which is given to MSME entrepreneurs. She has also clarified the NIC registration in her webinar, and the various reliefs about what's there. And mainly she has explained in a very deep about 10-12 reasons or the benefits which are given to MSME. And she was quite updated also, and explained all our participants about the PM Garib Kalyan Yojana, withdrawal of EPF, and various provisions like delayed GST payments, electricity, delayed electricity payments and all. And about the COVID emergency loans given by the various banks like SBI, UBI and Indian Bank, and various other bank schemes. I think our participants has learned a lot, and a new idea is generated in their minds to get themselves registered in MSME. Therefore, they were asking such a nice questions. And Surbhi was quite instrumental in replying each and every questions very clearly. And I think most of our participant has definitely benefited. And really, from her webinar, it is quite clear that when life gives you 100 reasons to cry, show life that you have 1,000 reasons to smile. And definitely it is a wake-up call, and we should all have to stand, work hard, and come out of this period. And I'm sure that there is another very good quote, that life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. With this quote, I thanks to Jaipur team and to Surbhi, and I'm sure she's quite professional and a chartered accountant, and she will definitely help the Jaipur chapter
in bringing such type of, in organizing such type of webinars. And I'm sure, and I'm very thankful to his father to introduce her to me and to introduce to ISHRE Jaipur chapter. And after a very time, we have found such a member, and we are sure, I'm sure that she will take Jaipur chapter to new heights. Thanks to Kishan, thanks to Ram, Mr. Gaurav, and Tapan Basurai, all CWC members to organize this webinar. And thanks a lot. Have a good day. Thank you. Thank you, sir. Thank you. And now, sir, could you please announce another next program that is from by Dr. Varun Mathur? Could you please share the date to our participants and attendees? 1 minute. Can I share screen? Yes, sir. Yes, I'm sharing. I'm giving you presenter. Yes. Next program, sir. Yeah, wait a minute. Kishan, I have, yeah. This is our next Yes. webinar planned on 10th May. Oh, sorry. Mr. Kishan, Yes, sir. I think I have this flyer right now on Sunday, 13th May, on cyber security, our next webinar. Okay, sir. Thank you. We are concluding this by ISHRE tune.